नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और वो कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर से उन व्यक्तियों के लिए जो इस समय ब्लड प्रेशर की दवाएँ ले रहे हैं, केमिकल मेडिसिन ले रहे हैं। तो सही मायने में देखा जाए, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, एक्चुअली में वो नॉर्मल होता ही नहीं है। सही मायने में नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है। अगर कहा जाए तो आपका ब्लड प्रेशर आपके लिए नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर हमारे लिए नॉर्मल है, बस यही सही क्राइटेरिया है। लेकिन अब जो हम लोगों को बताया जाता है जैसे कि 120/80 है, 130/80 है, ये जो स्टैंडर्ड ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? तो ये एवरेज होते हैं, ये नॉर्मल नहीं होते हैं, ये एवरेज होते हैं जिनको हमको नॉर्मल बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 लोगों पर स्टडी हुई, उनके बीपी नापे गए, उनके एवरेज निकाल के एक मीन निकाल लिया गया और उसको एक रेंज बना के बता दिया गया कि भाई ये जो है, या एक स्टैंडर्ड बना के बता दिया गया कि ये जो है नॉर्मल बीपी होता है। तो एक्चुअली में वो स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं। अब सोचिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति किसी भी रूप में एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आप दो व्यक्ति किसी को भी खड़ा कर दीजिए तो ना तो वो रचनात्मक रूप से एक जैसे होते हैं, ना क्रियात्मक रूप से एक जैसे होते हैं, ना ही भावनात्मक रूप से एक जैसे होते हैं। यानी ना तो एनाटॉमिकली, ना तो फिजियोलॉजिकली और ना ही इमोशनली वो एक जैसे होते हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो उनका ब्लड प्रेशर एक क्राइटेरिया में कैसे फिट हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। इसी चीज़ को देखिए, डॉक्टर BM हेगड़े जो है समझा रहे हैं, जो खुद एक MBBS MD हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इसी बात को समझा रहे हैं। That is what's called normal blood pressure. What is that normal blood pressure? You're a physiologist. I don't know. Gandhiji's blood pressure was 200/120 all his life. And who was losing sleep? Sushila Nair. Old man was sleeping nicely. And Gandhiji died of a very important complication of high blood pressure, bullet. His kidneys were all right, his brain was all right, his heart was all right, his vessels were all right, because his mind was all right. He didn't hate nobody. It is if you hate somebody only you get disease. Did you know that? Hostility is the most important risk factor of heart attack and cancer. Anger is the cause of cerebral hemorrhage. Not eating cholesterol or anything like that. Actually, for cholesterol, more the merrier. The more you have, the longer you live, because you have very strong wall in the cell. So our problem is one size fits all. Everybody must be 120/80. And we call this as, in physiology, we call it as normal. Is there a definition of normal? This is average. There's a big difference between normal and average. I'll give you an example for the younger generation. Average Indian height is male height is 5.4 plus minus 2 inches. Gaussian curve, mean plus 2 standard deviation, all the things that you write for all papers. Now imagine Amitabh Bachchan comes for a checkup. He's absolutely abnormal, 6.2. Our treatment is cut his leg, make him 5.6. Don't laugh, that's what we are doing in hypertension and diabetes also. I can tell you, your first director here, I've been seeing him for 45 years. His blood pressure is always 90/40. So he'll come and say, Endu cheyya. I told him, don't cheyya anything. You will be there forever. You will never die. This is the problem. So, Jaya Bachchan comes for a checkup. 4.6. She is the ideal candidate for transplanting that leg because she'll also become 5.6. This is exactly what you and I do in our science, my dear friends. You may laugh today, but go home and seriously think about it tonight. You will not get sleep. तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने गांधी जी के बीपी की चर्चा की है, जिसकी चर्चा मैं इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। और दूसरी बात जो मुख्य उन्होंने बताई कि चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट अटैक है, सीरेब्रल हेमरेज है, कैंसर है, इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है क्रोध है, अहंकार है, खुन्नस है, घृणा है। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में या एलोपैथ में। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो गोलियां नहीं खिला सकते हैं।
और यहाँ मैं एक बात और बता दूं, कभी भी आयुर्वेद की दवाओं को आप एलोपैथ की दवा या केमिकल मेडिसिन से तुलना मत करिए, क्योंकि आयुर्वेद की दवाओं का नेचर जो होता है वो फूड की तरह होता है, खाने की तरह एकदम। क्योंकि जो प्रकृति हमें खाना देती है वही प्रकृति आयुर्वेद की दवाएं भी देती है हमको। तो कभी भी आयुर्वेद की दवाओं को एलोपैथ की दवाओं के समान मत समझिए या उस जैसा मत समझिए। कभी भी जब दवाओं की बात आती है तो लोग के दिमाग में जो है वही बातें आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब तीसरी मुख्य बात जो उन्होंने बताई है कि उन्होंने इस एवरेज और नॉर्मल के कंसेप्ट को समझने के लिए हाइट का उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कि इंडिया में नॉर्मल हाइट 5 फुट 6 इंच है, ठीक है। तो अब अमिताभ बच्चन अगर चेकअप कराने आते हैं आपके पास तो वो तो 6 फुट के ऊपर के हैं, तो वो तो फिर एबनॉर्मल हो गए, रोगी हो गए। तो हमारी चिकित्सा क्या होगी, मतलब एलोपैथ में, वेस्टर्न मेडिकल साइंस में चिकित्सा क्या होगी कि उनकी टांग काट के उनको 5 फुट 6 इंच का कर दिया जाए। बीपी में, शुगर में जो है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जो बताती है वो यही बताती है कि बीपी ज़्यादा है तो कम कर दीजिए, शुगर ज़्यादा है तो कम कर दीजिए। कहने का मतलब वो सिर्फ पैरामीटर पे फोकस करते हैं, नंबर पे फोकस करते हैं, जबकि आयुर्वेद में मरीज पे फोकस किया जाता है। और उसी मरीज पे फोकस करने वाले कंसेप्ट को कहते हैं होल पर्सन हीलिंग या होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और जबकि एलोपैथ वाले क्या करते हैं, वो पैरामीटर पे फोकस करते हैं, डिसीज पे फोकस करते हैं, मरीज पे फोकस नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से कोलेटरल डैमेज होता है और बहुत प्रकार के साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो आपको नॉर्मल और एवरेज का अंतर समझना होगा, और जो इस अंतर को जितना जल्दी समझेगा वो इस चक्रव्यूह से उतना जल्दी बाहर निकल आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें और अपने मन की जो अंदर का डर है उनका वो उसको निकाल सकें। धन्यवाद।